Good evening, everyone. Welcome to today's session. Am I audible? Am I audible? आंटी थोड़ी थोड़ी Am I audible? Yes, you're audible. Thank you. Welcome to the day 4 of The Alchemist. So, we will start our session with a short meditation. Back comfortably, focus between the centers of your forehead. Take a deep breath in, deep breath out. If you exhale, leave behind all the tension, all the worry. As you inhale, feel the freshness of the air, the love, happiness, and peace that it has. The presence of God, your supreme Father. He is support, His help at every second, every very second of life. Affirm, I am made of love and light. I am God's child. Everything is perfect, whole, and complete in my life. Each day of my life is unique and special because I recognize the good things that happen in my life every day. I appreciate everything and be grateful. I am surrounded by love and gratitude. Everything happening with me is for my benefit. God is with me always. I know my personal destiny, and there is a force that wants me to realize my personal destiny. That force is my supreme Father, who guides me the best, who knows me the best, and who is with me every second of my life. All is well, perfect, whole, and complete. Thank you, thank you, thank you. Om Shanti. Share the screen of the video. Being visible. Yes, it's visible. Thank you so much, sister.
So what we have seen these 4 days that there was a shepherd named Santiago. He liked to travel, so he became a shepherd and he had many sheep for 2 years. Then his personal destiny is finding the treasure. He had dreams, so he went to an old lady who decoded his dream and suggested him to go to the pyramids, but he didn't believe it. Then he met an old man who was the king of Salem. He guided him, and somehow he began his destiny. He began his journey. But the money he got from the sale of those ships that was stolen, and now he was so disheartened. He has 2 stones now that the old man had given him um, to decide some objective questions in his journey. Those are Helium and Thermal, and the boy is running his fingers slowly over the 2 stones because he's thinking that he will sell those stones and return back home. So let's see what the boy does. He ran his fingers slowly over the stones, sensing their temperature and feeling their surfaces. They were his treasure. Just handling them made him feel better. They reminded him of the old man. तो वो जो दोनों स्टोन्स है जिनके बारे में वो बताया उनके ऊपर वो अपने स्लोली फिंगर्स को रन कर रहा है क्योंकि वो ये स्टोन्स बेच करके ही वो अपने रिटर्न टिकट लेने वाला है ऐसा उसने सोचा है और उसके पास अभी यही उसके ट्रेजर के लिए है जिसको वो ट्रेजर कह सकता है When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. He had said. तो अभी उसे ओल्ड मैन की याद आ रही है जिन्होंने वो स्टोन दिया था तो उन्होंने ये भी बोला था कि जब आपको कुछ चाहिए होता है जब हमें कुछ चाहिए होता है कि जो पूरी यूनिवर्स है जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमें उस तक मिलाने की कोशिश करता है हमारे साथ में वैसे इवेंट्स होते रहते हैं जिनसे कि हम उस जो भी चीज को हम चाहते हैं उस तक हम पहुंच पाए उसे हम अचीव करें The boy was trying to understand the truth of what the old man had said. There he was in the empty marketplace without a cent to his name and with not a sheep to guard through the night. But the stones were proof that he had met with the king, a king who knew of the boy's past. तब बॉय जो है ये सैंटियागो वो इन बातों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो कि ओल्ड मैन ने कहा था ना कि व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड हेल्पिंग यू टू अचीव इट तो इन बातों का जो ट्रुथ है वो जानना चाहते हैं क्योंकि अभी वो एक एम्प्टी मार्केट प्लेस में खड़ा है जगह पे उसके पास में कुछ भी एक सेंट भी नहीं है कोई शेप भी नहीं है बस ये स्टोन्स जो उसके पास है वही प्रूफ है कि वो किंग से मिला था जो क्योंकि किंग की ब्रेस्ट प्लेट से उसने निकाल करके वो स्टोन दिए और वो जो किंग था वो उस बॉय के पास्ट के बारे में भी जानता था दे आर कॉल्ड Hiram and Thamim and they can help you to read the omens. The boy put the stones back in the pouch and decided to do an experiment. The old man had said to ask very clear questions and to do that the boy had to know what he wanted. So he asked if the old man's blessing was still with him. तो इन दोनों स्टोन्स का नाम है यूरिम एंड थर्मल जो अभी ओल्ड मैन की उससे बात याद आ रही है ओल्ड मैन ने क्या बोला था कि ये जो जब भी वुमेन्स को रीड करने में अनएबल हो तो इन स्टोन्स को यूज करो बहुत क्लियर क्वेश्चंस करो ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि यस और नो में हमें जवाब मिल सके तभी उस बॉय ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ओल्ड मैन की ब्लेसिंग अभी भी उसके साथ है तो उसने एक स्टोन बाहर निकाला अपने पाउच से और वो था यस Am I going to find my treasure? He asked. तब उसने ये क्वेश्चन जैसे किया कि क्या मुझे मेरा खजाना मिलेगा? He stuck his hand into the pouch and felt around for one of the stones, and as he did so, both of them pushed through a hole in the pouch and fell to the ground. The boy never even noticed that there was a hole in his pouch.
He knelt down to find Hiram and Tubal and put them back on the couch, but as he saw them lying there on the ground and their face came to his mind, learn to recognize omens and follow them, the old man had said. तो अभी जब उसने ये क्वेश्चन किया कि क्या मुझे मेरा खजाना मिलेगा, ये बोलते ही जो उसके पाउच में एक होल था, उसमें से दोनों ही स्टोन्स बाहर आ गए, मतलब यस और नो दोनों वाले स्टोन्स बाहर आ गए। तो उसने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि उसके पाउच में कोई होल भी है, तो फिर वो नीचे झुका और उसने हीरो एंड थर्मन दोनों को वापस उस पाउच में डाला। पर जब वो ग्राउंड पे था तो उसके दिमाग में एक और फ्रेज आया, लर्न टू रिकॉग्नाइज वुमेन्स एंड फॉलो देम। अपने वुमेन्स को रिकॉग्नाइज करना सीखो और उन वुमेन्स को फॉलो करो, ओल्ड मैन ने ये कहा था। तो अभी उसने ये बात जैसे उसे याद आई तो उसे समझ आ गया। एंड वुमेन the boy smiled to himself. He picked up the two stones and put them back in his pouch. He didn't consider mending the hole. The stones could fall through any time they wanted. The boy smiled to himself. तो वो जैसे जैसे ही उमन याद आया वैसे ही वो स्माइल करता है सैंटियागो और जैसे जैसे उमन याद आता है तो वो स्माइल करता है और फिर वो दोनों स्टोन्स को पिक करके उसको अपने पाउच में डाल लेते हैं। उसके बाद में उसे ये ध्यान नहीं आता कि उसे होल को भी ठीक भी करना है। जो स्टोन्स है वो फॉल करते हैं एट एनी टाइम दे वांटेड, जब उनका मन करता है तभी वो फॉल करते हैं। इट लर्न दैट देयर वर सर्टेन थिंग्स वन शुड आस्क अबाउट सो as not to flee from one's own personal legend। तो कुछ चीजें हैं। He had learned that there were certain things one shouldn't ask about। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पूछना नहीं चाहिए। So as not to flee from one's own personal legend, ताकि वो अपने खुद के पर्सनल लीजेंड से दूर न जाए। I promised that I would make my own decision, he said to himself। तो उसने अपने आप से बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा। But the stones had told him that the old man was still with him and that made him feel more confident। तो उन स्टोन्स ने उसको क्या बताया कि जो ओल्ड मैन है वो अभी भी उसके साथ है, उसकी ब्लेसिंग्स उसके साथ है। इसकी वजह से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है। He looked around and the empty plaza again, feeling less desperate than before। This wasn't a strange place, it was a new one। तो उसने वापस उस एम्प्टी प्लाजा में देखा, उस मार्केट प्लेस में देखा और इस बार उसे उतना दुख नहीं हो रहा है। और ये कोई स्ट्रेंज प्लेस नहीं है, ये बस एक न्यू प्लेस है। आफ्टर ऑल व्हाट ही हैड ऑलवेज वांटेड व्हिच इज दैट टू नो न्यू प्लेसेस इवन इफ ही नेवर गॉट टू द pyramids he had already traveled farther than any shepherd knew। Oh, if they only knew how different things are just 2 hours by ship from where they are, he thought। Although his new world just an empty marketplace, he had already seen it when it was teeming with life and he would never forget it। तो अभी वो सोच रहा है कि ना उसका वो हमेशा से चाहता क्या था कि वो नई नई जगहों को जाने। भले वो पिरामिड्स तक नहीं पहुंचा पर फिर भी जितने शेपर्ड्स को वो जानते हैं उन सबसे ज्यादा दूर तक उसने ट्रैवल किया है। He remembered this word. It hurt him a bit to think about it, but he had never seen one like it before। As he mused about these things, he realized that he had to choose between thinking of himself as the poor victim of a thief and as an adventurer in quest of his treasure। तो भी उसे कुछ वर्ड याद आ रही है जो उसे मार्केट प्लेस में दिखी थी, जो बहुत सी सुंदर सी वर्ड थी, उसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे। उसके बारे में सोच करके उसे अभी दुख हो रहा था। तो उसने सोचा कि ये उसे ही डिसाइड करना है कि वो खुद को एक पुअर विक्टिम की तरह देखे
एक थीफ के पुअर विक्टिम की तरह देखिए, या फिर ये जो ट्रेजर खोजने की जो क्वेस्ट है उसमें अपने आप को एक एडवेंचरर की तरह देखिए। तो अभी उसने क्या बोला, आई एम एन एडवेंचरर लुकिंग फॉर ट्रेजर, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से बोला कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं ट्रेजर खोज रहा हूँ। He was shaken into wakefulness by sunlight. He had fallen asleep in the middle of the marketplace, and life in the plaza was about to resume. तो अभी वो सो गया था उसी मार्केट प्लेस के मिडल में, और अचानक से वो उठता है और प्लाजा जैसे ही रिज्यूम करता है, मतलब कि वो मार्केट प्लेस में लोग फिर आना जाना शुरू करते हैं, तब फिर वो उठता है। लुकिंग अराउंड ही सॉट हिज शेप एंड देन रियलाइज्ड दैट ही वाज इन अ न्यू वर्ल्ड. But instead of being saddened, he was happy. He no longer had to seek out food and water for the sheep. He could go in search of whose treasure instead. तो अभी जब वो देखता है ना, तो वो अपनी शिप को पहले खोजने का सोचता है, फिर रियलाइज करता है कि अब वो एक न्यू वर्ल्ड में है। तो अभी सैड होने की जगह वो हैप्पी है। उसको शिप के लिए खाना पानी खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने ट्रेजर को खोज सकता है। He had not a cent in his pocket, but he had faith. उसके पॉकेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर उसके पास में क्या है, फेथ है, विश्वास है। He had decided the night before that he would be as much an adventurer as the ones he had admired in the books. तो अभी वो कह रहा है, उसने डिसाइड किया था पिछली नाइट में कि वो एक एडवेंचरर की तरह रहेगा, जिनको वो अपने बुक्स में एडमायर करता है। Toy was assembled. The candy seller offered the boy the first sweet he had made for the cake. The boy thanked him, ate it, and went on his way. टॉय असेंबल होने लगा, तो एक कैंडी सेलर ने उस बॉय को जो फर्स्ट स्वीट उसने बनाई थी वो उसे दी। तो उस बॉय ने उसको थैंक्स किया और अपने रास्ते चल दिया। When he had gone only a short distance, he realized that while they were erecting the stall, one of them had spoken Arabic and the other Spanish. तो अभी थोड़ा सा ही दूर को गया था कि उसने रियलाइज किया कि जैसे ही वो लोग अपने स्टॉल को इरेक्ट कर रहे थे, अपने स्टॉल को लगा रहे थे, तो एक ने अरबिक में बोला और एक ने स्पेनिश में बोला। एंड दे हैड अंडरस्टूड ईच अदर परफेक्टली वेल। उसने ये भी देखा कि दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी लिया। There must be a language that doesn't depend on words, the boy thought. I've already had that experience with my ship, and now it's happening with people. तो अभी वो सोच रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी लैंग्वेज जरूर होगी जो कि वर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और ये एक्सपीरियंस उसका पहले भी रह चुका है अपनी शिप के साथ में, और अब पीपल के साथ हो रहा है। He's learning a lot of new things. Some of them were things that he had already experienced. तो वो बहुत नई नई चीजों को सीख रहा है, और इनमें से कुछ चीजें हैं जो कि उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई है एंड वेरेंट रियली न्यू, बट दैट ही हैड नेवर परसीव्ड बिफोर। पर ये जो चीजें वो नई नई एक्सपीरियंस कर रहा है वो न्यू नहीं है, पर बात है कि पहले उसने कभी उसको परसीव नहीं किया था। एंड ही hadn't perceived them because he had become accustomed to them. उसने परसीव क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो accustomed हो गया था, उसे हैबिट हो गई थी। If I can learn to understand this language without words, I can learn to understand the world. तो उसने रियलाइज किया कि अगर मैं इस लैंग्वेज को बिना वर्ड्स के अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो फिर तो मैं पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। Relaxed and unhurried, he resolved that he would walk through the narrow streets of Tangier. Only in that way would be able to read the omens. He knew it would require a lot of patience, but Shepherd knew all about patience. Once again, he saw that in that strange land, he was applying the same lessons he had learned with his sheep. तो अभी वो रिलैक्स्ड है, अनहरीड है, इसे कोई हड़बड़ी नहीं है, और रिजर्व है कि वो अब टैंजियर के जहाँ पे जिस प्लेस में बिल्कुल उसके नैरो स्ट्रिप्स में वो वॉक करेगा, और इसी तरह से वो अपने वुमेन्स को लीड करेगा। वो ये जानता है कि इस काम में उसे बहुत पेशेंस लगने वाला है, पर शेफर्ड्स को तो पेशेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और वंस अगेन फिर से
उसे स्ट्रेंज लैंड में वही सेम लेसन्स को अप्लाई करना है जो कि उसने अपनी शिप के साथ में लर्न किया था। ऑल थिंग्स आर वंडरफुल, ओल्ड मैन हैड सेड। अभी उसे याद आ रही है ओल्ड मैन की बातें। ओल्ड मैन ने कहा था ऑल थिंग्स आर वंडरफुल, मतलब ये सारे जो लेसन्स हम सीखते हैं कहीं ना कहीं हम जिंदगी में उसको अप्लाई करते रहते हैं। तो ऑल थिंग्स आर वंडरफुल। The crystal merchant awoke with the day and felt the same anxiety that he felt every morning. अभी उधर पे टैंजर में एक क्रिस्टल मर्चेंट है जो कि जगते हैं और फिर उनको सेम एंजाइटी फील होती है हर मॉर्निंग की तरह। He had been in the same place for 30 years, a shop at the top of a hilly street where few customers passed. तो उसकी जो शॉप है ना वो सेम प्लेस में 30 सालों से है। और ये जो एक हिली स्ट्रीट के ऊपर है एकदम टॉप पे, यहाँ पे बहुत कम ही कस्टमर्स आते हैं ना। इट वाज टू लेट टू चेंज एनीथिंग। The only thing he had ever learned to do was to buy and sell crystal glass. जो ओनली थिंग्स, जो सिर्फ एक थिंग है जो उसने अभी तक लर्न किया है, वो क्या है कि वो बाय करता है और सेल करता है क्रिस्टल ग्लासवेयर को। There had been a time when many people knew of his shop: Arab merchants, French and English geologists, German soldiers who were always well fooled. In those days, it had been wonderful to be selling crystal, and he had thought how he would become rich and have beautiful women in his side as he grew older. तो उसे याद आ रहा है कि एक टाइम था जबकि उसकी शॉप के बारे में बहुत लोगों को पता था उन दिनों में। कितना अच्छा लगता था इन क्रिस्टल्स को सेल करना, और उसने क्या सोचा था कि वो बहुत रिच होगा और ब्यूटीफुल वुमेन रहेगी जिस जैसे वो बड़ा होता जाए। बट एज द टाइम पास टैंजर हैड चेंज्ड, पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ टैंजर भी चेंज हो गया, प्लेस भी चेंज हो गई। द नियरबाई सिटी ऑफ स्यूटा had grown faster than Tangier and business had fallen. उसकी नियरबाई सिटी जो है स्यूटा वो ज्यादा फास्टर ग्रो हो गई और यहाँ का बिजनेस ठप पड़ गया। Neighbors moved away and there remained only a few small shops on the hill. तो जो नेबर्स थे वो मूव अवे कर गए, उधर चले गए और यहाँ पे बहुत ही कम शॉप्स बच गई। नो वन वाज गोइंग टू क्लाइम द हिल जस्ट टू ब्राउज थ्रू अ फ्यू स्मॉल शॉप्स। और इतनी कम दुकानों को खोजने के लिए, उनमें जाने के लिए कोई क्लाइम नहीं करेगा इस हिल को। But the crystal merchant had no choice. He had lived 30 years of his life buying and selling crystal pieces, and now it was too late to do anything else. तो क्रिस्टल मर्चेंट के पास में कोई चॉइस नहीं है क्योंकि उसने अपना जीवन के 30 साल उनको बिताया और खाया और सेल करते करते going industry. We had done this for years, and he was capable of doing it fast. But just before lunchtime, a boy stopped in front of his shop. He was dressed normally, but the practiced eye of the Christian merchant was there. Nevertheless, the merchant decided to delay his lunch by a few minutes until the boy arrived home. The merchant ने entire morning लोगों को ऑब्जर्व करते करते ही निकाल दिया। एकदम इनफ्रीक्वेंट कमिंग्स और गोइंग्स जो होती है स्ट्रीट में बहुत ही कम लोग आते जाते हैं और वो सबके स्केड्यूल को भी जानता है ऑब्जर्व करते करते। पर जस्ट बिफोर लंच टाइम उसे सैंटियागो दिखता है जो कि उसकी शॉप के सामने रुक जाता है और वो नॉर्मली ड्रेस्ड होता है। पर ये क्रिस्टल मर्चेंट की जो प्रैक्टिस्ड आईज है वो उसे ये जानने में हेल्प करती है कि इसके पास में बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं है कि वो अपने लंच को थोड़ा डिले करेगा और जब तक वो बॉय मूव ऑन ना करे। A card hanging in the doorway announced that several languages were spoken in the shop. The boy saw a man appear behind the counter. एक कार्ड है जो कि इस डोरवे पर हैंग है और इसमें लिखा है कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती, बहुत सारी लैंग्वेजेस इस शॉप में बोली जाती है। I can clean up those glasses in the window if you want, said the boy. The way they look now, nobody is going to want to। तो फिर उसने क्रिस्टल मर्चेंट को क्या बोला कि ये जो ग्लासेस है वो मैं साफ कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अभी ये जिस तरह से दिख रही है कोई भी इसे खरीदेगा नहीं। मैं in exchange you could give me something to it।
तो भी जैसे उसने बोला कि मैं इनको क्लीन कर सकता हूँ, तब उस मैन ने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने देखा, उसको रिस्पॉन्ड कुछ नहीं किया। फिर सैंटियागो ने बोला कि उसके एक्सचेंज में तो आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। The man still said that it is voices that he had to make a decision in the couch. The man is standing in the other check it out. He began to clean the glasses. In half an hour, he had cleaned all the glasses in the window, and as he was doing so, two customers had entered the shop and bought some crystal. तो उस मैन ने कुछ जब नहीं बोला, तब बॉय ने सेंस किया कि उसको एक डिसीजन लेना होगा। तो अपने पाउच में उसने देखा उसकी एक जैकेट है, तो उसने रियलाइज किया कि अगर इस जैकेट की तो कोई नीड नहीं होगी इस डेजर्ट में। तो उसने एक जैकेट बाहर निकाल करके ग्लासेस को क्लीन करना शुरू किया। आधे घंटे में उसने पूरे अच्छे से ग्लासेस को क्लीन कर दिया। और जब वो ये काम कर रहा था, दो कस्टमर्स भी शॉप में आकर उन्होंने क्रिस्टल की खरीदे। When he had completed the cleaning, he asked the man for something to eat. Let's go and have some lunch, said the crystal merchant. तो जब उसने क्लीनिंग कंप्लीट करी, तो उसने कहा कि कुछ काम का उसने बोला कि चलो कुछ खाते हैं, लंच करते हैं। They put a sign at the door and they went to a small cafe nearby. As they sat down at the only table in the place, the crystal merchant laughed. तो उसने एक साइन किया डोर की तरफ और वो लोग एक स्मॉल कैफे में चले गए। और जैसे वो लोग बैठे, क्रिस्टल मर्चेंट हंसने लगा। यू डिडंट हैव टू डू एनी क्लीनिंग, ही सेड, द कोरल रिक्वायर्स मी टू फीड अ हंग्री पर्सन। तब क्रिस्टल मर्चेंट ने बोला कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। जो जो कुरान है वो रिक्वायर, वो हमें चाहता है कि हम एक हंग्री पर्सन को खाना खिलाएं। And then why did you let me do it? The boy asked. तो फिर उसने सैंटियागो ने बोला, तो फिर तुमने मुझे वो करने क्यों दिया? Because the crystal was dirty and both you and I wanted to cleanse our minds of negative thoughts. जब उसने बोला कि क्रिस्टल तो डर्टी था और तुम और मैं, हम दोनों को जरूरत थी कि हम अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से क्लियर करें। When they had eaten, the merchant turned to the boy and said, I'd like you to work in my shop. Two customers came in today while we were working, and that's a good omen. जब उन्होंने खा लिया, तब फिर मर्चेंट ने बोला उस बॉय को कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी शॉप में काम करो। जब तुम काम कर रहे थे, तब दो कस्टमर्स आए और ये एक गुड ओमेन, एक शुभ शगुन है। People talk a lot about omens, thought the shepherd, but they really don't know what they are saying. Just as I hadn't realized that for so many years I had been speaking a language without words to my sheep. तो सैंटियागो सोच रहा है कि लोग बहुत कुछ कहते हैं उसको रियलाइज किए बिना, जैसे कि मैंने भी रियलाइज किए बिना इतने साल से एक लैंग्वेज के लिए अपने शिप के साथ में बिना वर्ड्स के। डू यू वांट टू गो टू वर्क फॉर मी? द मर्चेंट आस्क्ड। तो मर्चेंट ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? आई कैन वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ टुडे, द बॉय आंसर्ड, एंड वर्क ऑल नाइट until dawn. I will clean every piece of crystal in your shop. In return, I need money to get to इजिप्ट टुमारो। तो सैंटियागो ने बोला कि मैं पूरे दिन आज काम करूंगा, मैं पूरी रात काम करूंगा, सुबह तक काम करूंगा, पर मैं सारे के सारे जो भी पीसेस क्रिस्टल के आपकी शॉप में उन सबको क्लीन कर दूंगा, बस उसके रिटर्न में मुझे पैसे चाहिए कि मैं इजिप्ट पर चले गई। The merchant laughed. Even if you clean my crystal for an entire year, even if you earned a good commission selling every fruit, you would still have to borrow money to get to Egypt. There are thousands of kilometers of desert between here and there. तो वो मर्चेंट हंसा। उसने बोला कि अगर तुम इन सारे क्रिस्टल को क्लीन कर दो एक पूरे साल तक, तुम्हें गुड कमीशन भी मिल जाए हर एक पीस के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें इजिप्ट जाने के लिए पैसे बोरो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डेजर्ट है यहाँ से वहां तक के बीच में। There was a moment of silence so profound that it seemed the city was asleep. No sound from the bazaars, no arguments among the merchants, no men climbing to the towers to chant. तो अभी यहाँ पे बहुत ही साइलेंट वाला एक मोमेंट है, जो इतना ज्यादा साइलेंस है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी सिटी सो रही है। बाजार का कोई साउंड नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं,
मर्चेंट्स के बीच में कोई क्लाइम नहीं कर रहा उन टावर्स पे चैंट करने के लिए। नो होप, नो एडवेंचर, नो ओल्ड किंग्स और पर्सनल लेजेंड्स, नो ट्रेजर एंड नो पिरामिड्स। यहाँ पे कोई होप नहीं दिख रही है, कोई एडवेंचर, कोई ओल्ड किंग नहीं दिख रहा है, कोई पर्सनल लेजेंड नहीं दिख रहा है, कोई ट्रेजर नहीं दिख रहा है, कोई पिरामिड नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ the world had fallen silent because the boy's soul had। ऐसा लग रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड है वही साइलेंट हो गया है, क्योंकि जो बॉय की सोल है वो भी साइलेंट हो गई। He sat there, staring blankly through the door of the cafe, wishing that he had died and that everything would end forever at that moment। यहाँ पे वो बैठा है, वो स्टेयर कर रहा है बस blankly उस कैफे के डोर, और वो सोच रहा है, वो विश कर रहा है कि वो मर जाए। तो और एवरीथिंग कुड एंड फॉरएवर एट दैट मोमेंट, वो सब कुछ खत्म हो जाए इस मोमेंट में। द मर्चेंट लुक्ड एंग्शियस एट द बॉय, ऑल द जॉय दैट मॉर्निंग had suddenly disappeared। मर्चेंट फिर उसको एंग्शियस भी देखना है बॉय को, जितनी जॉय उसने सुबह देखी थी उसके चेहरे पे वो अचानक गायब हो गई। आई कैन गिव यू द मनी यू नीड टू गेट बैक टू योर कंट्री माय सन, सेड द क्रिस्चियन मर्चेंट। क्रिस्चियन मर्चेंट ने बोला कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ ताकि तुम अपनी कंट्री चले जाओ। The boy said nothing. He got up, adjusted his clothing, and picked up his pouch. I'll work for you, he said। तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, सैंटियागो ने, वो बस उठा, उसने अपनी क्लोथिंग एडजस्ट की, अपना पाउच पिक किया, और फिर उसने बोला कि मैं आपके लिए काम करूँ। And after another long silence, he added, I need money to buy some shoes। तो फिर एक और लॉन्ग साइलेंस हुआ, फिर उसने बोला कि मुझे पैसे चाहिए कि मैं कुछ शीप खरीद सकूं। With this, we have come to part 2 of the story। अब बॉय कहाँ काम करेगा? क्रिस्टल शॉप में। The boy had been working for the crystal merchant for almost a month, and he could see that it wasn't exactly the kind of job that would make him happy। The merchant spent the entire day mumbling behind the counter, telling the boy to be careful with the pieces and not to break anything। अब इसे काम करते करते पूरा एक महीना हो गया है, और उसने रियलाइज कर लिया है कि ये जो काम है वो वैसी जॉब नहीं है जो कि उसे खुश कर सके। पूरे मर्चेंट जो है वो दिन मोबाइल करते रहता है बिहाइंड द काउंटर, बॉय को उसको कहते रहता है कि वो उन पीसेस के साथ में केयरफुल रहे, कुछ टूट न जाए। But he stayed with the job because the merchant, although he was an old grouch, treated him fairly। The boy received a good commission for each piece he sold and had already been able to put some money aside। पर बस जॉब में क्या होता है, पहले जो मर्चेंट है ये बहुत गुड है, लेकिन ये उसे बहुत फेयरली ट्रीट करता है, और इसको एक गुड कमीशन भी मिलता है। हर एक पीस जो ये सेल करता है उन सबके ऊपर एक गुड कमीशन ये अर्न करता है, और अपने मनी को साइड में जमा करने लगा है। That morning he had done some calculating. If he continued to work every day as he had been, he would need a whole year to be able to buy some sheep। तभी उसने कैलकुलेट किया कि अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा हर दिन काम करना, तो एक साल में वो कुछ शीप खरीद पाएगा। I'd like to build a display case for the crystal, the boy said to the merchant। तो उस मर्चेंट को उस बॉय ने कहा कि मैं एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ क्रिस्टल्स के लिए। We could place it outside and attract those people who pass at the bottom of the hill। तो हम उसे बाहर लगा सकते हैं, और जो लोग बॉटम ऑफ द हिल के उधर से पास करते हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। I've never had one before, the merchant answered। People will pass by and bump into it and pieces will be broken। तो उस मर्चेंट ने बोला कि मेरे पास पहले कभी भी कोई डिस्प्ले केस नहीं था, जो लोग हैं वो आएंगे जाएंगे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और वो पीसेस टूट जाएंगे। Well, when I took my ship through the field, some of them might have died if we had come upon us, but that's the way life is with sheep and with shepherds। तो सैंटियागो ने बोला कि जब मैं अपनी शिप को फील्ड से लेकर जाता था उनमें से कुछ मर भी सकती थी जब हम एक स्नेक के सामने आ जाते हैं, पर इसी तरह से लाइफ चलती है शिप्स के साथ और शेपर्ड के साथ। The merchant turned to a customer who wanted 3 crystal glasses। He was selling better than ever, as if
time had turned back to the old days when the street had been one of Tangiers major attractions. जो मर्चेंट है वो एक कस्टमर की तरफ टर्न किया उसने और वो कस्टमर श्री क्रिस्टल ग्लासेस चाहता था। अभी जो मर्चेंट है वो हमेशा से ज्यादा अच्छे तरह से सेल करता था। उसने टर्न उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे जो टाइम है वो पीछे चला गया था जब टैंजर की एक मेजर अट्रैक्शन हुआ करती थी और जब वो बहुत अच्छी तरह से सेल किया करता था। बिजनेस हैज रियली इम्प्रूव्ड he said to the boy after the customer had left. I'm doing much better and soon you'll be able to return to your ship. Why ask more out of line? तो उसने कहा जो बिजनेस है वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है, सच में बहुत इम्प्रूव हो चुका है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ पहले से और तुम भी बहुत जल्दी अपनी शेप पे रिटर्न करोगे। और क्या ही चाहिए लाइफ से बिकॉज वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स के बॉय सेड ऑलमोस्ट विदाउट then he regretted what he had said because the merchant had never met the king. जब उस क्रिश्चियन मर्चेंट ने बोला कि और क्या ही चाहिए लाइफ से और क्यों कुछ मांगना है लाइफ से, तो फिर उसने बॉय ने बोला कि क्योंकि हमें वुमेन्स को रिस्पॉन्ड करना है। तो ये बॉय ने ऐसे ही बात कह दी सैंटियागो ने, उसके उसमें कोई मीनिंग नहीं था पर फिर उसने रिग्रेट किया कि उसने ऐसे बोला ही क्यों, क्योंकि जो मर्चेंट है वो तो कभी उस किंग से मिला ही नहीं। इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी बिगनर्स because life wants you to achieve your personal legend, the old king had said. तो वैसे ओल्ड किंग की बात याद आने लगी कि ये प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी कहलाता है बिगिनर्स लक, क्योंकि जो लाइफ है वो चाहती है हमें कि हम अपने पर्सनल लेजेंड तक पहुंच सके। But the merchant understood what the boy had said. The boy's very presence in the shop wasn't only, and as time passed and money was pouring into the cash drawer, he had no regrets about having hired the boy. लेकिन मर्चेंट ने सब कुछ अंडरस्टैंड किया जो भी बॉय ने बोला। जो बॉय की प्रेजेंस है उसके शॉप में वो भी एक वुमन ही है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है और जैसे उसके कैश ड्रॉवर में मनी आ रहा है वैसे उसे कोई रिग्रेट नहीं कि उसने उस बॉय को हायर कर रखा है। द बॉय वाज बीइंग पेड मोर मनी देन ही डिजर्व, thinking that self wouldn't amount to much, had offered the boy a high commission rate. He had assumed he would soon return to his ship. जो बॉय है उसको वो जितना डिजर्व करता है उससे भी ज्यादा ही पे कर रहा है, क्योंकि वो जो मर्चेंट है वो जो सेल्स है वो ज्यादा अमाउंट नहीं करती है और उस बॉय को वो ज्यादा हाई कमीशन रेट ऑफर करता है और वो अज्यूम करता है कि वो जल्दी ही अपने शीट पे रिटर्न कर देगा। व्हाई डिड यू वांट टू गेट टू द पिरामिड्स, ही आस्क्ड, टू गेट अवे फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द डिस्प्ले। तो उसने पूछा कि तुम पिरामिड्स पे जाना चाहते थे। Because I have always heard about them, the boy answered, saying nothing about his dream. The treasure was now nothing but a painful memory, and he tried to avoid thinking about it. तभी उसने बोला कि क्योंकि मैंने हमेशा उन पिरामिड्स के बारे में सुना है, अपने ड्रीम के बारे में उसने कुछ नहीं बताया और वो अभी सोच रहा है कि जो ट्रेजर है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेनफुल मेमोरी है और वो उसके बारे में सोचना अवॉइड करना चाहता है। सो वी विल कीप दिस सेशन टू हियर. Tomorrow we will start reading from I Don't Know Anyone Around Here. Thank you so much for joining today. Thank you so much, sister. Thank you, sister.